Hello friends, welcome to Arivar Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us talk about May 2021 related current affairs. This is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SSCGL, CHSL, RRB and other competitive examination point of view. So guys, please subscribe our channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us talk about 4th of May 2021 related current affairs. आज हम जानेंगे 4 मई 2021 से related सारे current affairs. But before this, let us talk about some important news headlines related to the 4th of May 2021. तो चलिए चलते हैं 4 मई 2021 से related कुछ news headlines देख लेते हैं. So the first important news headline of today's is Lewis Hamilton wins Portugal's Grand Prix. Lewis Hamilton outtook title rival Max Verstappen and Mercedes teammate Valtteri Bottas to win the Portugal's Grand Prix. Verstappen finished second, while Bottas, who started from pole, came in a disappointing third place. Sergio Perez took the flag in fourth with Lando Norris, fifth with McLaren. हमें पता होना चाहिए कि लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स जीता है. लुइस हैमिल्टन ने प्रतिद्वंदी मैक्स वर्स्टेपन और मर्सिडीज टीम के साथी वॉल्टेरी बोटास को हराकर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है. वेस्टापेन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बोटास, जिन्होंने पोल से शुरुआत की थी, निराशाजनक तीसरे स्थान पर आए. सर्जियो पेरेस ने चौथा स्थान प्राप्त किया है. लैंडो नॉरिस के साथ मैक्लेरन ने पांचवा स्थान हासिल किया है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज जापान्स ऑर्डर इज टू राइजिंग सन ऑनर टू श्यामला गणेश. द जापानीज गवर्नमेंट रिसेंटली अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन टू अ बैंगलोर बेस्ड जापानीज टीचर श्यामला गणेश. शी इज अ जापानीज टीचर एट द स्टेपा जेनरियन इंस्टीट्यूशन and also at the Ohara School of Ikebana in RT Nagar, Bengaluru. She has tutored more than hundreds of students since its inception 38 years ago. Ikebana is a Japanese art of flower arrangement. हमें पता होना चाहिए कि श्यामला गणेश जी को मिला है जापान का ऑर्डर ऑफ अ राइजिंग सन सम्मान. जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलोर स्थित जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के सम्मानित किया है. वह स्वेप्नजेरियन संस्थान में एक जापानी शिक्षक है और आरटी नगर बेंगलुरु में इकेबाना के ओहरा स्कूल में कार्यरत है. उन्होंने 38 साल पहले स्थापना के बाद सैकड़ों से अधिक छात्रों को पढ़ाया है. इकेबाना एक जापानी फूलों की व्यवस्था कला है. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. श्यामला गणेश इज ऑर्डर्ड with order of a rising sun. Next important news headline of today's is about the Indian Navy. Indian Navy launches Operation Samudra Setu 2nd. The Indian Navy has launched Operation Samudra Setu 2nd to help in faster transportation of medical oxygen and other requirements from the countries to India. As a part of Operation Samudra Setu 2, 7 Indian naval ships have been deployed for shipment of liquid medical oxygen-filled cryogenic containers and associated medical equipment from various countries. These warships are Kolkata, Kochi, Talwar, Tabar, Trikand, Jalashwa and Airavat. हमें पता होना चाहिए कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है. भारतीय नौसेना ने अपने बिगड़ते हुए कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की शुरुआत की है. ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के एक भाग के रूप में 7 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को विभिन्न देशों के तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए तैनात किया गया है. यह युद्धपोत है कोलकाता में, कोची में, तलवार में, तबर में, त्रिंकद में, जलाश्वा में और ऐरावत में. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज
Wipro overtakes HCL Tech to become third most valued Indian IT firm. Wipro regained its position as the third largest Indian IT service company by market capitalization of rupees 2.65 trillion by suppressing HCL Technologies. Rupees 2.62 trillion market cap. TCS remained at the top of the list with a market cap of rupees 11.51 ट्रिलियन फॉलोड बाय इन्फोसिस। हमें पता होना चाहिए कि HCL टेक को पीछे छोड़ विप्रो बनी तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी। विप्रो ने HCL टेक्नोलॉजीज को 2.62 ट्रिलियन रुपए बाजार पूंजीकरण को दबाकर 2.65 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण द्वारा तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी सेवा के रूप में पुनः अपना स्थान प्राप्त किया है। TCS जो है 11.51 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ इन्फोसिस के बाद सूची में सबसे ऊपर है। तो सबसे पहले इन्फोसिस है, उसके बाद TCS और थर्ड नंबर पे आई है HCL टेक। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। So guys, now let us we talk about 4th of May 2021 related current affairs. So today's first question is विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? When was World Comedy or Laugher Day was celebrated? So answer is 2nd of May. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। मई के पहले सप्ताह के रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, जो कि इस साल 2 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज किस राज्य में कोविड-19 प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर शुरू किया गया है? इन विच स्टेट स्टार्टेड इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट? सो आंसर इज तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट तमिलनाडु इज चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी बनी है? सो विच बिकेम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी? सो जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, विप्रो आफ्टर इन्फोसिस एंड TCS कंपनी, विप्रो कंपनी बिकम द थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती है? वन द पुर्तगस ग्रैंड प्रिक रेस? सो आंसर इज लुइस हैमिल्टन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। जैसा कि हमने पढ़ा है, लुइस हैमिल्टन ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ही वॉन द पुर्तगस ग्रैंड प्रिक्स रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज अप्रैल 2021 तक GST कलेक्शन कितने करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा? हाउ मच GST कलेक्शन रीच्ड बाय अप्रैल 2021? सो आंसर इज रुपीज 1.41 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज मंजूर एहतेशाम का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? मंजूर एहतेशाम हैज़ डाइड। व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस लिटरेचर, और वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड? सो आंसर इज संजय मोहंती। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ADB और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज लोन्ड बाय ADB टू इंडिया टू फाइट कोरोना? सो आंसर इज 11,370 रुपीज़। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। 11,370 करोड़ रुपए का ऋण जो है ADB बैंक ने भारत को दिया है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज ISL टीम FC गोवा के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ ISL टीम FC गोवा? सो आंसर इज युआन फर्नांडो। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। युआन फर्नांडो अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ FC गोवा IFSL टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज ICC टेस्ट रैंकिंग से पहले स्थान पर किस देश की क्रिकेट टीम पहुंची है? So, which country's cricket team reached first place in ICC Test rankings? So, answer is Australia cricket team. Important है, हमें याद रखना है कि ICC Test ranking में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पहले स्थान पर पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज ग्वाटेमाला सिटी में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन इन आखिरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 हेल्ड इन ग्वाटेमाला सिटी? सो आंसर इज 4। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। 4 पदक जीते हैं तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज
किस राज्य सरकार ने क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड अ क्लीनलीनेस ड्राइव कॉल्ड क्लैप? सो आंसर इज आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। क्लैप इज एन क्लीनलीनेस ड्राइव started by government of AP or Andhra Pradesh, and capital of state Andhra Pradesh is Hyderabad. Next question, question number 13 is सोली जहांगीर सोराबजी 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या है? So सोली जहांगीर सोराबजी died at the age of 91. What was he was famous? So he was famous सोली जहांगीर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, वह एक सोली जहांगीर थी और एक सोराबजी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज किसने मसाले और पाक जड़ी बूटी कोडेक्स समिति के 5वें सत्र का उद्घाटन किया है? हु इनॉग्रेटेड द 5th सेशन ऑफ द स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स कोडेक्स कमिटी? सो आंसर इज रीता तेओटिया। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, रीता तेओटिया ने मसाले और पाक जड़ी बूटी की कोडेक्स समिति के 5वें सत्र की उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रतिक्रिया कोष में कितनी राशि दी है? हाउ मच अमाउंट डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव इन द डिजास्टर रिस्पांस फंड फॉर कोविड-19 प्रिवेंशन मेजर्स इन ऑल स्टेट? सो आंसर इज 8,873 करोड़ रुपीज। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज किस तैराक ने उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप में 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच स्विमर सेट अ नेशनल रिकॉर्ड इन स्विमिंग इन द 50 मीटर बैकस्ट्रोक एट उज्बेकिस्तान ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप्स? सो आंसर इज श्रीहरि नटराज। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज किसे भारत में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है? Who was appointed as Charge d'Affaires in US Embassy in India? So answer is Daniel Smith. Important है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज किस कंपनी ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है? सो हमने कल पढ़ा है, विच कंपनी स्टार्टेड ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र? सो आंसर इज महिंद्रा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा सम्मान दिया है? विच स्टेट गेव द फ्रंटलाइन कोविड योद्धा सम्मान टू द जर्नलिस्ट? सो आंसर इज ओडिशा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट ओडिशा इज भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है? हु वाज अवॉर्डेड जापान्स ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड? सो आंसर इज श्यामला गणेश। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, श्यामला गणेश ऑफ बेंगलुरु इज अवॉर्डेड जापान्स ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज भारतीय रिजर्व बैंक और RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सो आंसर इज T. रविशंकर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, T. रविशंकर इलेक्टेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? विक्रमजीत कंवरपाल हैज डाइड, व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेट्स पर GST दर को कितने प्रतिशत किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूस GST रेट ऑन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बाय व्हाट परसेंट? सो आंसर इज 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज किस देश में बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया गया है? इन विच कंट्री महाभारत एंड रामायण वर इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ चिल्ड्रन? सो आंसर इज सऊदी अरेबिया। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि सऊदी अरेबिया के बच्चे भी अब अपने करिकुलम में महाभारत और रामायण पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज किस नागरिक सम्मान से सम्मानित वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संतनाम का निधन हुआ है? साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति संतनाम डाइड विथ विच सिविलियन ऑनर? सो आंसर इज पद्म भूषण। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि पद्म भूषण से सम्मानित वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संतनाम का हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 से 22 में सड़क निर्माण पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा करी है? हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज have been spent in the central government in the year 2021 to 22 for road construction?
सो आंसर इज 15 लाख करोड़ रुपीस, 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हु वाज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार? सो आंसर इज त्रिपुरारी शरण। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। त्रिपुरारी शरण इज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द बिहार स्टेट एंड कैपिटल ऑफ स्टेट बिहार इज पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज किस देश ने जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पाद किया है? Which country produced the first batch of COVID-19 vaccines for animals? So answer is Australia. Next question number 29 is अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? So International Astronomical Science Day was celebrated on. So answer is 2nd of May. Next question number 30 is किस राज्य की सरकार ने चार धाम यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है? So which state government banned चार धाम यात्रा? सो आंसर इज उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट उत्तराखंड इज देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? व्हेन वर्ल्ड ट्यूना डे वाज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 2nd of May। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज स्पेस एक्स ने ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी तक पहुंचाया है? हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द International Space Station reached Earth via SpaceX by Dragon X? So answer is 4। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है पृथ्वी तक पहुंचाया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से, स्पेस एक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज किसने नीदरलैंड में 35वीं इरेडिविसी फुटबॉल का खिताब जीता है? हु वन द टाइटल ऑफ 35th इरेडिवासी फुटबॉल इन नीदरलैंड्स? सो आंसर इज अजाक्स एम्स्टर्डम। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज किसने टेनिस खिलाड़ी को एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हर्ट अवार्ड से नामित किया है? सो हुज टेनिस प्लेयर वॉज नॉमिनेटेड for the Fed Cup Heart Award from Asia Oceania Zone? So answer is Sania Mirza. Very important question of today. Fed Cup Heart Award from Asia Oceania Zone is nominated Sania Mirza. Next question number 35 is विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? When was World Press Freedom Day was celebrated? So answer is 3rd of May. Next question number 36 is विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई थी? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021? सो आंसर इज इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड्स। आई रिपीट, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड्स इज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एंड इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd of May. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज पंडित देबू चौधरी जी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? पंडित देबू चौधरी हैज़ राइट व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस सितार प्लेयर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। पंडित देबू चौधरी जी बहुत ही प्रसिद्ध सितार वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज कनुप्रिया का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? कनुप्रिया हैज़ राइट व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस एंकर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज किस राज्य में ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की भर्ती का फैसला किया गया है? इन विच स्टेट टू स्टॉप वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन डिसाइडेड टू रिक्रूट ऑक्सीजन नर्सेज? सो आंसर इज स्टेट महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट महाराष्ट्र इज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज किस देश ने नाइजीरिया को ब्रेन इन ब्रोंज नामक कलाकृतियों को वापस करने की घोषणा की है? Which country declared Nigeria to return artifacts called Ben in Bronze? So answer is Germany. Important है, हमें याद रखना है। Next question number 41 is किस कंपनी में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए $200 मिलियन का पुनर्स्थापना कोष शुरू किया है? Which company started a $200 मिलियन reinstatement fund to reduce carbon emissions? So answer is Apple. Important है, हमें याद रखना है कि एप्पल कंपनी ने $200 मिलियन का रीइंस्टेटमेंट फंड जो है कार्बन एमिशंस के लिए रोकने के लिए वापस स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज
BBC के चयनकर्ता कौन थे जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? Who was the famous BBC selector who died at the age of 88? So answer is किशन रुकटा. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है किशन रुकटा जो कि BBC के सिलेक्टर थे, उनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. हिंदुस्तान AFC के मालिक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? Who was the owner of Hindustan FC who has died recently? So answer is दिलीप कुमार बोस. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है हिंदुस्तान FC के ओनर दिलीप कुमार बोस जी का हाल ही में निधन हो चुका है. सो आई होप गाइज आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो हमने बारी बारी से डिस्कस करे हैं. सो आप इन्हें प्लीज़ लिखिएगा, याद करिएगा और वीडियो तो कम से कम पूरा आप देखिएगा ही. और साथ ही में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए. स्टे होम, स्टे सेफ. आई होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा. सो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक अवेलेबल हो पाए. और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज़ आवर पावर. फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. स्टे ट्यून्ड विद आर्यवर्त ट्यूटर्स. थैंक यू.